So good morning student, welcome to online classes of Lal Public School. Today we will continue our science chapter number 7, and chapter name is adaptations in plants. Okay, and our today's topic is aquatic plants. So let's start. Plants that grow in water are called aquatic plants, and aquatic plants are of three types: floating plants, fixed plants, and underwater plants. Okay, so let's start with floating plants. Some aquatic plants float freely in water. They are either spongy or light in weight so that they can float on water. Duckweed and water hyacinth are floating plants. Okay, ऐसे प्लांट जो कि वाटर पर फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीली फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं. ओके, एंड दे आर आइदर स्पॉन्जी और लाइट इन वेट. एंड कोई भी थिंग है या प्लांट है, जब वो लाइट वेट होगा तभी वो इजीली वाटर पर फ्लोट कर पाता है. ओके, दैट्स व्हाई जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं वो भी कैसे होते हैं, लाइट इन वेट, हल्के होते हैं बहुत, उनमें बहुत ज्यादा वेट नहीं होता है. एंड उनका बॉडी कैसा होता है, स्पॉन्जी, सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल. So that's why वो water पर easily float कर पाते हैं. Okay, and duckweed and water hyacinth are floating plant. Okay, see in the picture duckweed plant आपको दिखाई दे रहा है. It's a soft and spongy plant. Okay, and ये weight में भी बहुत क्या होते हैं, light होते हैं. That's why ये easily water पर float कर सकते हैं. Clear? Now second is fixed plant. These plants are fixed to the back of the pond with the help of their roots. Okay, according to इनके नेम से ही हमें पता चल रहा है, fixed plant में इनकी जो roots हैं वो pond के bottom से क्या रहती हैं, connected रहती हैं, fixed रहती हैं. Okay, so that's why हम इन्हें fixed plant कहते हैं. They have thin, long and hollow stem, and their leaves are broad, which are flat on the surface. Okay, and जिनका stem है वो कैसा होता है, thin, long and hollow. Hollow means inside, empty space inside. उनके stem में अंदर की तरफ जो space है वो कैसा होता है, empty space होता है. Okay, their leaves are broad, which float on the surface of water. इनकी जो leaves हैं वो कैसी होती हैं, broad होती हैं, जिससे कि ये easily water की surface पर float कर पाती है. Stomata are present on the upper surface of leaves. Okay, stomata are present on the upper surface of leaves, and a waxy coating is present on the surface of leaves, which prevent them from rotting. Okay, इनके leaves पर जो stomata है वो कहाँ present होते हैं, upper surface पर. Okay, बट हमने chapter 6 में क्या डिस्कस किया था, that जो stomata है वो stomata कहाँ present होते हैं, leaf की अंडर साइड पर, नीचे की साइड पर. बट इन aquatic plants stomata are present on the upper surface of leaves, and a waxy coating is present on the surface of leaf, which prevent them from rotting. और लीफ पर एक वैक्सी कोटिंग, एक मोम की जो कवरिंग है, वैक्स की जो कोटिंग है वो प्रेजेंट होती है लीव्स की सरफेस पर. दैट्स व्हाई जो लीव्स हैं वो वाटर में रहते हुए भी क्या नहीं होती है, रोट नहीं होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है, डैमेज नहीं होती है. ओके, ड्यू टू वैक्सी कोटिंग. Lotus and water lily are fixed plants. Now come to next, that is underwater plants. These plants grow under the surface of water. They have thin, narrow and long leaves without any stomata. Okay, अंडर वाटर जो प्लांट्स होते हैं या ये कहाँ ग्रो करते हैं, अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस के नीचे ग्रो करते हैं. ओके, एंड इनकी जो लीव्स होती है वो कैसे होती है, थिन, नैरो एंड लॉन्ग. सी इन द पिक्चर. एंड लीव्स आर विदाउट एनी स्टोमेटा. इन लीव्स पर स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है. दे ब्रीथ थ्रू द बॉडी सरफेस. सो ये जो प्लांट है वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, बॉडी सरफेस के थ्रू ब्रीथ करते हैं. एंड दे एब्सॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड given out by aquatic animals. Aquatic animal जो CO2 give out करते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाती है वो CO2. ओके, उसी डिसॉल्व CO2 को जो aquatic plant है वो यूज करते हैं. ओके, एंड कीप द पॉन्ड क्लीन. और इससे वो पॉन्ड को क्या रखते हैं, क्लीन रखते हैं. ओके, जो CO2 का अमाउंट है वो वाटर में इंक्रीज नहीं होता है. They give out oxygen which is taken in by water animals. And जो plants हैं ये क्या give out करते हैं, ऑक्सीजन गिव आउट करते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाता है. एंड जो एक्वेटिक एनिमल है वो इस वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं फॉर ब्रीदिंग. क्लियर? Cactus and pondweed are underwater plants. These are examples of underwater plants, pondweed and cactus. Clear? Now next is plant of the grass family.
Plants of the grass family are important to us in the following ways. जो ग्रास फैमिली के प्लांट्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई? लेट्स रीड. Cereal plants belong to the grass family. They provide food for human beings and animals. Okay, wheat, barley, rice, maize are cereals. Okay, cereals means अनाज जो हम eat करते हैं, that is wheat, barley, rice and maize. These are cereals. Okay, so cereal plants belong to which family? Grass family. Okay, they provide food for human beings and animals. वो human beings के लिए, animals के लिए food provide करवाते हैं. Okay, wheat, barley, rice and maize इनके जो seeds हैं वो human beings eat करते हैं as a food. एंड जो रिमेनिंग पार्ट है वो कौन यूज करता है? एनिमल यूज करते हैं एज अ फॉडर. ओके, फॉडर मींस फूड दैट इज गिवन टू फार्म एनिमल. जो फार्म एनिमल्स को फूड दिया जाता है दैट आर कॉल्ड फॉडर. उसे हम फॉडर कहते हैं. सो जो ग्रास फैमिली के प्लांट है, ओके, जो प्लांट्स ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये ह्यूमन बींग्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए फूड प्रोवाइड करवाते हैं. ओके, wheat, barley, rice, maize and fodder are obtained from plant of the grass family. Here, bamboo plant is a grass. It is used for making basket, mats, huts, chairs, etc. Okay, जो bamboo plant है, it's also a grass. means ये भी grass family से belong करता है. and हम इसे कहाँ use कर सकते हैं? We use it for making brooms, baskets, mats, huts and chairs. Clear? Now come to next some interesting plants. फर्स्ट वन इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ओके, अभी तक हमने लास्ट चैप्टर में 6th चैप्टर में भी हमने डिस्कस किए टाइप ऑफ जो हमने प्लांट्स वहां पर डिस्कस किया था. लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है जो कि प्लांट को फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है. ओके, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 6. ओके, एंड इस चैप्टर में हमने अभी तक डिस्कस किया दैट लैंड पर ग्रो करने वाले प्लांट एंड वाटर में जो ग्रो करते हैं प्लांट, मींस टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड एक्वाटिक प्लांट्स. ओके, now here is some interesting plant. First one is insectivorous. So plants that trap insects are called insectivorous plant. They are also called carnivorous plant. Okay, you all know about carnivorous animals है ना. Carnivorous animals means animals that eat flesh or meat of other animals है ना, उन्हें हम carnivorous animals कहते हैं. Same like this, जो carnivorous plant है वो भी किसको eat कर रहे हैं? इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट को ईट कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इनका नेम क्या है? इंसेक्टिवोरस. एंड इंसेक्ट इज आल्सो अ फ्लैश और मीट ऑफ अदर एनिमल्स है ना. इंसेक्ट्स का फ्लैश या मीट है, सो दैट्स व्हाई हम इन्हें कार्निवोरस एनिमल्स भी कह सकते हैं. ओके, सो इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस इज सेम. ओके, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का ही अनदर नेम क्या है? कार्निवोरस प्लांट. ओके, सो इन प्लांट्स दैट ट्रैप इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड दे आर आल्सो कॉल्ड कार्निवोरस. They grow in poor soil. Poor soil means soil is deficient in nitrogen. उसमें soil में किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन जो न्यूट्रिएंट है उसका कमी होता है, नाइट्रोजन का. So Venus flytrap, pitcher plant and sundew plant are example of insectivorous plant. Okay, these are example of insectivorous plant and how they trap insect. Let's read about them. Leaves of Venus flytrap plants are hinged to form a trap. See in the picture. पिक्चर में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है वीनस फ्लाई ट्रैप का. सो वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट की जो लीव्स होती हैं दे आर हिंज मींस जॉइंड टुगेदर फ्रॉम दिस पार्ट. पिक्चर में देखिए, इस पार्ट से जो लीव्स हैं क्या हो जाती हैं? अटैच्ड हो जाती हैं विद अ हिंज जॉइंट टू अनदर थिंग्स. ओके, एंड ये जॉइन होकर क्या फॉर्म करती हैं? ट्रैप का फॉर्मेशन करती हैं. दे हैव सेंसिटिव हेयर्स ऑन देम. और विंग्स के लीव्स के साइड्स में देखिए आपको यहाँ पर सेंसिटिव हेयर्स भी शो हो रहे हैं. दीज आर सेंसिटिव हेयर्स. व्हेन एनी इंसेक्ट टचेस द सेंसिटिव हेयर, लीव्स स्नैप शट कीपिंग द इंसेक्ट इनसाइड. और जैसे ही इन सेंसिटिव हेयर पे कोई भी इंसेक्ट टच करता है तो ये जो लीव्स हैं सडनली क्या हो जाती है? शट हो जाती है, क्लोज हो जाती है. कीपिंग द इंसेक्ट इनसाइड, उस इंसेक्ट को अंदर वो क्या कर लेती है? क्लोज कर लेती है. एंड लीव्स क्या हो जाती है? शट हो जाती है, क्लोज हो जाती है. ओके, and the trapped insect is slowly digested and absorbed by the leaf. Okay, and जो insect inside में close हो गया, इस leaf के अंदर बंद हो गया, जो leaf जो है उसे slowly क्या करती हैं? digest करती हैं and absorb कर देती हैं. Okay, because जो ये वीनस फ्लाईट्रैप है ये ऐसे सॉइल में ग्रो करता है जहाँ पर नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी होता है. ओके, तो जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो उस इंसेक्ट से ये
अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करते हैं. ओके. Next one is pitcher plant. It's also an insectivorous plant. So pitcher plants leaves roll to form pitcher. See in the picture. पिक्चर में देखिए आपको पिक्चर प्लांट का यहाँ पर आपको पिक दिखाई दे रहा है. इसमें क्या है, जो पिक्चर प्लांट की लीव्स होती हैं वो रोल होकर राउंड शेप में टर्न होकर एक क्या बनाती हैं, लार्ज कंटेनर का शेप बना लेती है. ओके. लीव जो है रोल आउट होकर आपस में ज्वाइन होती हैं एंड पिक्चर और कंटेनर का शेप बना रही है. ओके. इट हैज अ लिड टू कवर द माउथ ऑफ द पिक्चर. और इस पिक्चर प्लांट में यहाँ पर एक लिड भी देखिए पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है. ये जो लिड है ये पिक्चर प्लांट के माउथ को कवर करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होता है. When any insect lands to drink nectar, it slips and fall into the pitcher. और जब कोई भी इंसेक्ट इस पिक्चर प्लांट का नेक्टर ड्रिंक करने के लिए आता है तो वो स्लिप होकर इस पिक्चर प्लांट में इनसाइड जो है फॉल डाउन हो जाता है इसके अंदर. Inside the pitcher it is drawn and its nutrients are absorbed by the plant. Okay. And इस पिक्चर प्लांट में यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस फ्री रहता है, तो जो इंसेक्ट है वो उस डाइजेस्टिव जूस में डिप हो जाता है, डूब जाता है, फॉल हो जाता है. ओके. डूब जाता है एंड उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पिक्चर प्लांट क्या कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है. ओके. जैसे इंसेक्ट इनसाइड जाता है पिक्चर प्लांट का जो लिड है ये इसके माउथ को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है. ओके. सो इंसेक्ट जो है वापस इस पिक्चर प्लांट से बाहर नहीं आ पाता. ओके. ये जो शेप है लाइक पिक्चर. क्लियर एवरीवन? Next one is non-green plants. So non-green plants lack chlorophyll and hence cannot make their own food. Okay, we all know that green plants have chlorophyll. जो green plants होते हैं उनके पास chlorophyll होता है. Okay, green color pigment होता है जिसे हम chlorophyll कहते हैं. And उसी chlorophyll की help से ही plant जो है अपना food खुद prepare करते हैं. Okay, they can make their food on. वो अपना food खुद prepare कर सकते हैं. We had already discussed in chapter number 6. Chapter 6 में हमने discuss किया था photosynthesis process, the process in which plants make their food on. Okay, green plants make their food. बट जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं इसके नेम से ही आपको शो हो रहा है, नॉन ग्रीन प्लांट्स मींस इन प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, क्लोरोफिल इज एब्सेंट. ओके. दैट्स व्हाई हम इन्हें क्या कह रहे हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स. ओके. एंड क्लोरोफिल एब्सेंट है, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. वो अपना फूड भी खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. सो फ्रॉम वेयर दे गेट देयर फूड, तो अपना फूड कहाँ से गेट करेंगे ऐसे प्लांट्स, दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. वो अपना फूड कहाँ से गेट करते हैं, रिमेन्स जो होता है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का, उससे ही अपना फूड गेट करते हैं. Thus they are called saprophytic plants. नॉन ग्रीन प्लांट्स को ही हम और क्या इनका नेम है, दैट इज saprophytic plants भी हम इन्हें कह सकते हैं बिकॉज ये डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से अपना फूड गेट करते हैं. दैट्स व्हाई हम इन्हें क्या कहते हैं, saprophytic plants. ओके. नॉन ग्रीन प्लांट्स और saprophytic plants. Clear? And mushroom, molds and Indian pipe are some examples of non-green plants. Okay. Now let's memorize what we had discussed in this chapter. We had discussed about habitat. हमने first क्या discuss किया था, habitat के बारे में. So what is habitat? The place where a plant grows or an animal lives naturally is called its habitat. Second is adaptations. The changes that help plants or other living organisms to survive in their habitats are called adaptations. Third one is terrestrial plants. Plants that grow on land are called terrestrial plants. ऐसे plant जो कि land पर grow करते हैं हम उन्हें terrestrial plants कहते हैं. Aquatic plants, plants that grow in water are called aquatic plants. Clear? Next one is insectivorous plant. So plants that trap insect are called insectivorous plant, like pitcher plant and Venus flytrap. And the last one is saprophytic plants, plants that cannot make their food and get their food from dead plants and animals are called saprophytic plants or non-green plants. Clear? So different types of plants grow at different places. Plants can be aquatic or terrestrial on the basis of their habitats. Habitats के base पर plant two types के हो सकते हैं, that is aquatic plants and terrestrial plant. Terrestrial plants are found in plain, mountain, desert, etc. Okay,
and the aquatic plants can be floating, fixed or underwater. Aquatic plants में हमने 3 types के plant discuss किए थे, that is floating plant, fixed plant और underwater plant. And the last point is insectivorous plants trap insect. Insectivorous जो plant है वो किसे trap करते हैं? Insects को trap करते हैं. And insectivorous plant को हम carnivore plant भी कहते हैं. Okay. So here is our chapter number 7 is completed. I hope you all understood about that. So related to question answer related to this chapter, we will continue in our next class. Okay.